actually I lost my father. I'm sorry to hear that. So how did you Mm, manage to get this tough time, because you have to study also and you lost your father? Hello, audience. We have today Kamlesh Pal with us today. Kamlesh is from pharmaceutical background and now he's starting his successful career into intellectual property at IQA. So congratulations, Kamlesh. Thank you, ma'am. Thank you. So how is your job going with IQA? Actually, we are in a under a training process. They are teaching various schedule regarding. So we are just in a training right now. Okay, you are starting with the training right now. So is this your first job, or you Yes, have ma'am. This is done my other first job? job. Okay, okay. So how is the experience like? So it is work from office, work from home. How it is? Actually, ma'am, this is the work from home. I actually genuinely I don't feel I am working. I'm just take a training. I Okay, love to do in IPRM medicine. I don't feel like any kind of work pressure their okay. company giving to their employee. I'm freely to working. I'm happy with the IQVIA, the team and management team. They are taking care of us. Okay, very nice, very nice. So it is work from home and you are reporting to IQA Gurgaon. Okay, and this is your first job. So you graduated from NIPER, right? National Institute of Yes, ma'am. Pharmacy. Okay, so Master, ma'am. Actually, I did my master from Naipa Raebareli, not okay, graduation. you Master. did your master's in pharmacy, pharmaceutics from National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Raebareli. Okay, and Yes. your bachelor's of pharmacy is from Kanpur, right? Yes. So how does it feel that coming from a very small town? Kanpur is a very small town, and you are working with a multinational company right now. So how does it feel? Actually, I'm living in Varanasi. I'm not from Kanpur. Okay, Uh, I study on there okay. in Kanpur, then from back to the Raebareli. Mm-hmm. Being in a part of in the IQVIA, this is the big industry. Mm-hmm. So I'm quite happy to the work, especially which I like to work in area, especially in IPR sector. Mm-hmm. So I'm happy about that. हम्म। तो जब आप मतलब जब जैसे मम्मी पापा तो आपके यहीं रहते होंगे होम टाउन में, तो हाउ हम दे आर फीलिंग कि अब आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में हैं और अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि कोविड आया है और सब लोग अभी थोड़े परेशान है कि अनएम्प्लॉयमेंट है और आप जॉब शुरू कर रहे हैं, तो इसमें आपको कैसा फील होता है? हाँ, थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है कि क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जॉब ऑफर हुई थी हम्म। अरबिंदो से, हेट्रो से। तो अच्छा। R&D की जॉब थी, तो मैं जो मेरे फैमिली वाले वो जाने नहीं देते थे एक्चुअली कि अच्छा। वहां जाओगे है हैदराबाद, तो एक तो कोविड वोविड है, इसी के चक्कर में लोग जाने नहीं देते थे। तो मैंने एक मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था आईपी में। हम्म। तो मैंने आपका वो वीडियो देखा था, फिर मैंने आपका चैनल सब कुछ सर्च किया, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ज्वाइन कर। अच्छा, तो आपकी पहले R&D में आपके जॉब ऑफर्स थे अरबिंदो फार्मा से और हेट्रो से, तो मतलब यस। आपका उतना इंक्लिनेशन नहीं था या कोविड की वजह से नहीं जा पाए, क्या हो गया? वो एक्चुअली मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था अच्छा। FR&D में, जो कि हम्म। मेरे दो दोस्त चले गए। फिर हम्म। मेरी फैमिली कही, कमलेश तुम रहने दो, अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ, अभी कोविड है। ऊपर हम्म। से एक्चुअली आई लॉस्ट माय फादर। सो ओके। दैट्स व्हाई आई ड्रॉप द जॉब एंड दैट्स व्हाई आई कम टू द IPR सेक्टर। अच्छा, अच्छा। तो उस बीच में तो अब अच्छा है कि आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हो, यस। तो योर पापा टुडे मस्ट बी लाइक प्राउड ऑफ यू स्टार्टिंग योर करियर. यस, ऑफ कोर्स, So, ऑफ कोर्स। that means it was a tough time for you and your family, is it? So how did you manage to get this tough time, because you have to study also and you lost your father because of COVID only? यस मैम। Okay, I'm sorry to hear that. So ये tough times में आपने कैसे अपने आप को motivated रखा? एक्चुअली पापा वो एक बस एक ही बात कहते थे कि जो भी काम करो, जो जो तुम्हें अच्छा लगता है, ये नहीं कि वो उसमें पैसे ज्यादा अच्छे हैं उस इंडस्ट्री में, या फिर शोकेस उसमें ज्यादा है, बस जो तुम्हें अच्छा लगता है बस वो करो।
ये मत देखो कि उसमें पैसा कम है, बस तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। हम्म, लाइफ का एम होना चाहिए ना कि सक्सेसफुल होना, हैप्पी, खुश रहो बस। उससे सक्सेस होना एक अलग बात है, खुश रहना एक अलग बात है। सक्सेस हम्म, जो मिलती है वो उससे स्ट्रगल करना पड़ता है जबकि हैप्पीनेस के लिए सेटिस्फेक्शन चाहिए तुम्हें। जब तुम्हें काम अच्छा लगता है तुम्हें ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगे, तो हैप्पीनेस, दैट माय द ड्रीम इज द हैप्पीनेस, नॉट अ सक्सेसफुल मैन। क्या बात है, पापा ने तो बहुत अच्छा लेसन आपको दिया है। और मम्मी अब खुश होंगी कि आप अभी घर पे हो और जॉब भी स्टार्ट हो गई है और वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। हाँ, मम्मी सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि मैं घर पर हूँ। हाँ सबसे हाँ हाँ। इम्पोर्टेंट बात बस यही है। हाँ, तो उनको फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट आप दोनों दे पा रहे हो। वेरी गुड, यस। वेरी गुड। तो जब आप अपनी जैसे बी फार्मेसी कर रहे थे, फिर आपने एम फार्मेसी की, तो आपने ये आईपीआर सब्जेक्ट अपना क्या पढ़ाई किया था? जैसे आप कह रहे हैं ना, आपका इंटरेस्ट तो ज्यादा एफआरएनडी में था। मेरा नहीं, जो भी फार्मेसी करता है उसका मेन होता है, कोर होता है ना वो मैम, हाँ। कोर होता है वो, इसलिए वो उसी तरफ जाना चाहता है। हम्म, क्योंकि जब मैंने मास्टर करा था वहाँ पर रायबरेली में, तो एक हम लोग का सब्जेक्ट था आईपीआर, अच्छा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो एक वहाँ से जो वहाँ पर फैकल्टी थी नहीं, तो एक बाहर के टीचर आते थे सीएसआईआर से में, ओके ओके। आईआईटीआर के। वो एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। हम्म उन्होंने सीएसआईआर से पीएचडी की, हम्म पोस्टडॉक किया था ऑस्ट्रेलिया से इन केमिस्ट्री। तो हम्म, वो मतलब वो अपना पूरा करियर आईपीआर में कर लिए थे शिफ्ट। इज अच्छा। अ बिग चेंज। ओके या। तो मैं उनसे तो थोड़ा सा इंटरेक्शन किया, सर से पूछा सर ये कैसे इंडस्ट्री काम करती है, आपने इतनी बड़ी, यार इज बिग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इवन स्टूडेंट ड्रीम करते हैं कि मेरा पीएचडी वहाँ इनरोल हो जाए। तो मैंने उनसे पूछा सर आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री बैकग्राउंड से भी आप आईपीआर में क्यों क्या कर रहे हो? मुझे बहुत समझ में नहीं आया कि क्यों कर रहे हैं आईपीआर में। तो मैंने पूछा तो सर ने बहुत चीजें बताया। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं भी उसमें जा सकता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ, एक बार मुझे चांस मिले तो मैं जा सकता हूँ आईपीआर इंडस्ट्री में। तो तो मैं आपके उसी जगह से तो आपके प्रोफेसर सर ने आपको काफी इंस्पायर किया कि ये एक अच्छी फील्ड। हाँ, तो एक आपके अच्छी फील्ड है, ग्रोइंग फील्ड है। तो अब आपके हिसाब से जब आप कंपेयर करते हो कि एफआरएनडी और आईपीआर में, आप क्या अंतर पाते हो जिससे आपको आपको हैप्पीनेस मिलती है? मेन चीज बस मैं घर पर हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अगर मैं हम्म, एफआरएनडी में होता तो शुड बी इन हैदराबाद, इन फार्मा इंडस्ट्री। ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें नए नए जो टेक्नोलॉजी होती है, जो भी हम्म पेटेंटेड होती है या फिर एक्सपायर्ड होते हैं, वो सबसे पहले पता चलता कि क्या हो रहा है हम्म इंडस्ट्री में, और हम्म क्या कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां फार्मा में पेटेंट करवा रही है, मेडिकल डिवाइसेस हुए, बिल्कुल मेडिसिन हुए, बिल्कुल। सप्लीमेंट्स हुए, बहुत सारी चीजें। तो इसको पता चलता है कि नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम देख सकते हो एज ए फ्यूचर कैंडिडेट में। जबकि अगर आप फार्मा में काम करते हो तो ये वो कोर है, ऑफिस में जाओ, लैब में काम करो, इंस्ट्रूमेंट हैंडल करो, टेस्टिंग करो, सही है तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करो। डेली रूटीन एक जैसा रूटीन है। हम्म। बस वही मुझे नहीं पसंद है कि रोज एक ही टेस्ट ट्यूब में आओ, टेबलेट पंचिंग करो या फिर इंजेक्शन बनाओ, तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। तो अब आपको इसमें अच्छा लग रहा है और आपके प्रोफेसर ने आपको इंस्पायर, और बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आपने बताया होगा कि आपने आईपीआर में अब जॉब अपनी स्टार्ट कर ली है? हाँ, मैंने बहुत लोग अभी भी मेरी बात होती है, मेरी लगभग मैक्सिमम फ्रेंड तो पीएचडी में हो गए इनरोल, और दो अच्छा। फ्रेंड हैं जो मैक्लॉयड में है, एक और एक अरबिंदो में वो काम हम्म। कर रहे हैं एफआरएनडी में। तो वो अच्छा। भी कहते हैं अच्छा यार कोई, हाँ, क्योंकि उनके भी डिपार्टमेंट में आईपीआर सेक्टर है। हाँ तो हाँ वो हाँ। मुझसे भी तो पूछते रहते हैं ये सब कैसे होता है, तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ उन लोगों को, अच्छी बात है। सर्चिंग में कैसे होता है, पेटेंट सर्चिंग। तो अभी पीएचडी करने का मन है या अभी आईपीआर में ही आगे कॉर्पोरेट करियर बनाने का मन है, क्या सोचा नहीं है? करना है पीएचडी, पीएचडी नहीं करना है मैम। क्यों, क्या क्या आपको लगता है कि पीएचडी करने से, मतलब आपके हिसाब से आपके लिए ठीक क्यों नहीं है पीएचडी, ऐसा कैसे लगता है आपको? एक नहीं, इंटरेस्टिंग, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरा मन था कि मैं पीएचडी कर लूं। हम्म तो फिर जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो मेरे पास एक, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊं, जब मैंने पीएचडी पर मैंने ड्रॉप किया, तो जब आप पीएचडी ऑप्ट करो तो आपके हम्म पास एक विजन होना चाहिए, क्योंकि हम्म। 5 साल में उसे कंप्लीट करना होता है। राइट।
बस वही एक मैं विजन, बहुत मैंने पेपर पढ़े, नेचर के पेपर पढ़े, साइंटिफिक रिपोर्ट पढ़ी कि क्या क्या मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। हम्म जबकि एक मेरे गाइड थे, हम्म गाइड के फ्रेंड थे, वो हम लोग को भी टीच करते थे, मेडिकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे, हम्म पॉलीमर पढ़ाते थे। वो इसमें एमआईटी में है। अच्छा, अरे वाह। हाँ हाँ, इसमें एमआईटी में। तो वो लोग कहते थे कम से कम अगर तुम्हारे पास कोई भी एक कंटेंट है जो तुम अपने कम्युनिटी को दे सकते हो इन द 5 साल के साल में, तो तभी पीएचडी करना। हम्म। तो वो बहुत, हाँ मतलब बहुत स्पेसिफिक टीचर थे। तो वो हम लोग को एज ए रूम पर आते थे, बच्चों को हम लोग को पढ़ाते थे। बहुत उनका फ्रेंडली नेचर था। तो हम्म बहुत ही स्पष्ट बताया था, अगर तुम्हारे पास कोई फोकस है तभी हम्म जाना, वरना 5 साल में सिर्फ तुम पेपर छापोगे, रिव्यू बुक चैप्टर, इससे कुछ नहीं होगा। हम्म बस तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, इससे तुम कम्युनिटी को कुछ दे नहीं पाओगे। इससे हम्म बढ़िया तुम जॉब कर लो, जॉब करो, जॉब अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, कॉर्पोरेट में लगे रहो। वेरी गुड, तो वेरी मैं नाइस। तो मैंने उन्हीं सर से पूछा था, सर आईपीआर सेक्टर कैसा? कहता है बहुत ब्राइट सेक्टर है। हम्म अब इसमें मैं बताऊं, आप तो बहुत ज्यादा डिमांड है इन द आईपीआर सेक्टर में, बायोटेक और फार्मा का, बहुत हम्म। ज्यादा। गुड गुड। तो जब आपने ये वाला हमारा प्रोग्राम किया, तो आपको इस प्रोग्राम में क्या क्या अच्छी बातें लगी कि क्या सीखने को मिला, मेन आपकी क्या लर्निंग्स थी? सबसे बात है, जो सब्जेक्ट चीज है, जैसे हम लोग के आईपीआर सर ने पढ़ाते, वो सिर्फ केस पढ़ाते थे, थोड़े बहुत, क्योंकि हम लोग को सिर्फ पास करना होता था। वो हाँ ज्यादा हाँ। हम लोग सीरियसली लेते थे, क्योंकि हम लोग फार्मा बैकग्राउंड के, सिर्फ हम लोग मेन चीज को फोकस करते, ये तो सिर्फ आईपीआर है, छोड़ो, हो हम्म ही जाएगा, पास तो हो ही जाएंगे एक दिन में पढ़ के। हाँ, तो हम लोग उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन जब मैंने आईपीआर में ज्वाइन करना मतलब इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि अब मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे। आपका बहुत बहुत से कैंडिडेट का इंटरव्यू था, मैंने उनसे भी देखा, उनको चेक किया। मैंने कहा कि नहीं ठीक है। अब प्लस जो बेसिक होता है आईपीआर, हम्म ट्रेडमार्क हुआ, पेटेंट डेलीगेशन हुआ, बहुत सारी चीजें जो छोटे छोटे वीडियो में आपके थे, जो हम्म वेबसाइट के वीडियो में थे, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, इसमें बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखती हैं। तो मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी एक बेसिक नॉलेज आईपीआर की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और दूसरा होना चाहिए दैट सीवी। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट हम्म सीवी इज बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट सेक्टर में, अगर जब आप अप्लाई करते हो किसी जॉब के लिए तो। हम्म। तो आपने, आपको अपना सीवी आपने जब आप इम्प्रूव किया, मैं देख रही हूँ जो मुझे सीवी मिला काफी वो अलग है जो आपने पहले बना रखा था। हाँ, बहुत अलग था। मैं क्या ही कर रहा था उस सीवी के साथ। ठीक है। तो अब आपको लगता है कि सीवी जब आपने इम्प्रूव किया तो उससे आपको काफी फायदा हुआ कॉर्पोरेट सेक्टर में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फायदा होता है। और जब आप आईक्यूआ में इंटरव्यू दे रहे थे तो कितने राउंड्स हुए, डर लग रहा था, क्या हो रहा था? मतलब सारे क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे थे, कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, तो पहले जो वो मुझे लगता है कि एक टेस्ट हुआ था, हम्म स्क्रीनिंग का हुआ था टेस्ट। तो मेनली जनरल बातें पूछी गई थी कि आईपीआर क्या होता है, क्लेम्स क्या होते हैं, हम्म इंडिपेंडेंट क्लेम, डिपेंडेंट क्लेम। हम्म तो ये सब था टेस्ट। तो मैंने लिख के सबमिट कर दिया था। हम्म एक घंटे के अंदर शायद आया था, हम्म स्क्रीनिंग के हम्म पेपर आया, एक घंटे के अंदर आपको लिख के सबमिट कर देना है। फिर इसके 2 दिन बाद इंटरव्यू हुआ शेड्यूल। तो इंटरव्यू में ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं हम्म आईपीआर सेक्टर से, बस वही पूछा कि नोवेल्टी क्या है, तो हम्म और इंडियन पेटेंट के रूल्स और कौन कौन से जो इन्वेंशन है जो नॉन पेटेंटेबल है, हम्म वो बताया मैंने। बहुत सिंपल क्वेश्चन। और जेनरिक में, ब्रांडेड में, ट्रेडमार्क में क्या क्या अंतर है, बेसिक अंतर। तो मैंने बता दिया, वो तो सिंपल था। इंटरव्यू उतना मेरा टफ नहीं हुआ था। बस एक ही क्वेश्चन मैंने मतलब मैं जानता हूँ कि मैंने अच्छे से उत्तर नहीं दिया, वो था पेटेंट लैंडस्केप। अच्छा। पेटेंट, हाँ, तो बेसिक क्या होता है लैंड। तो मैंने 2-3 का एक वीडियो भी देखा था यूट्यूब पर, कुछ आर्टिकल भी पढ़े। तो मैंने एक रफ आइडिया जनरेट करके उनको बताया था हम्म। कि क्या होता है ठीक है। पेटेंट। तो आपको वहां और भी लोग मिले होंगे, आईआईपीटी के काफी लोग हैं आईक्यूआ में, जपनीत मैम मैनेजर हैं शायद, शायद अभी नहीं, पता नहीं अभी होगा वो, तक, हाँ वर्क हाँ फ्रॉम होम की वजह से शायद पता नहीं होगा। हाँ, इस वजह आईक्यूआ में बहुत से। सारे आप जाओगे तो जो आईआईपीटी जिनको हमने मेंटर किया है, हमारे कम से कम वहां पे 10-15 बच्चे काम कर रहे हैं, जिनको एक एक साल भी हो गया काम करते हैं। वहाँ
क्यूबिया जल्दी कोई छोड़ता नहीं है, कम से कम 3 साल 4 साल काम करता है, हाँ हाँ, तभी IQ वो लोग बहुत अच्छी छोड़ते हैं कंपनी क्यूबिया। है करियर स्टार्ट करने के लिए। वंडरफुल कंपनी। चलिए बढ़िया है, आपकी ड्रीम पूरी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ कि जो मम्मी आपकी हैं वो बहुत खुश हैं आपसे, क्योंकि उनको उनको सपोर्ट दे पा रहे हैं आप, जिसको जान के मैं बहुत खुश हूँ। और जो आपने टाइम और पैसे इन्वेस्ट किए वो उसका आपको फायदा हुआ। थैंक यू। चलिए आप अपने मम्मी को मेरी तरफ से रिगार्ड्स दीजिएगा और थैंक यू। और मैं विश करती हूँ कि आप और आगे आगे बढ़े, अभी तो ये फर्स्ट स्टेप लिया आपने, यस यस, और IQ में आगे मैनेजर बने और सुपरवाइजर बने और अच्छा अच्छा काम करें। ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, थैंक यू। This is how more and more people are getting success each day. If you want such success for yourself, I recommend to watch the masterclass. There's a link given in the description and I want you to see the masterclass now.